Assalamu alaikum viewers and welcome to Pakistan's Educated Youth. I am Rehan and today we're going to discuss difficult words of vocabulary from Dawn editorial dated 23rd December 2020. So let's get started. Viewers, this is video's learning outcome, and after watching this video you would be able to learn the meanings and practical usage of all these 29 words of vocabulary. So the topic of today's editorial is Pakistan-Saudi ties. So let's move on to the sentence. The relationship between Pakistan and Saudi Arabia is indeed a strong one that goes back decades. इस सेंटेंस में आई थिंक मुश्किल वर्ड कोई नहीं है. दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इज़ इंडीड अ स्ट्रॉन्ग वन दैट गोज़ बैक डेकेड्स. इसका उर्दू तर्जुमा है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन यकीनन एक मजबूत रिश्ता है जो कई दहाइयों पर मुहित है. नेक्स्ट सेंटेंस. While Pakistanis have a special regard for the kingdom due to its position as the custodian of Islam's holiest cities, political, economic and military ties are also robust. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो है कस्टोडियन और रोबस्ट. कस्टोडियन का मतलब है निगहबान. कस्टोडियन मीन्स निगहबान. नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट, और रोबस्ट का मतलब है ताकतवर या मजबूत. रोबस्ट मीन्स ताकतवर या मजबूत. सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं. While Pakistanis have a special regard for the kingdom due to its position as the custodian of Islam's holiest cities, political, economic and military ties are also robust. इसका उर्दू तर्जुमा है, अगरचे सऊदी अरब का इस्लाम के सबसे मुक़द्दस शहरों के निगहबान की हैसियत से पाकिस्तानियों के यहाँ एक ख़ास मकाम है, लेकिन सियासी, माशी और अस्करी ताल्लुकात भी मजबूत हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. However, the relationship has experienced turbulence over the past few years, mainly because of changing geopolitical realities in the region and the varying responses Islamabad and Riyadh have given to meeting these challenges. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड है टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस का मतलब है हंगामा या हलचल. टर्बुलेंस मीन्स हंगामा या हलचल. सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं. However, the relationship has experienced turbulence over the past few years, mainly because of changing geopolitical realities in the region and the varying responses Islamabad and Riyadh have given to meeting these challenges. इसका उर्दू तर्जुमा है, ताहम पिछले चंद सालों में ताल्लुकात में हलचल रही, जिसकी ख़ास वजह ख़ित्ते में बदलती हुई सियासी सूरत हाल और इस्लामाबाद और रियाज़ का इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ लाहे अमल का इख्तियार करना है. नेक्स्ट सेंटेंस. द मोस्ट रीसेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ अनईज इन टाइज was the Saudi demand for timely repayment of part of a loan Pakistan had taken from the kingdom. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड है मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन का मतलब है इजहार. मैनिफेस्टेशन मीन्स इजहार. सेंटेंस दोबारा पढ़ेंगे. द मोस्ट रीसेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ अनईज इन टाइज was the Saudi demand for timely repayment of part of a loan Pakistan had taken from the kingdom. इसका उर्दू तर्जुमा है, ताल्लुकात में बेचैनी का सबसे हालिया इजहार सऊदी हुकूमत का लिए गए कर्ज़े की वक्त पर जुज़वी अदायगी का पाकिस्तान से मुतालबा था. नेक्स्ट सेंटेंस.
Though the money was returned to the Saudis with China's help, in the past such demands were unthinkable from Riyadh. दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं. Though the money was returned to the Saudis with China's help, in the past such demands were unthinkable from Riyadh. इसका उर्दू तर्जुमा है, अगरचे ये रकम सऊदियों को चीन की मदद से वापस कर दी गई, लेकिन माजी में रियाज की जानिब से इस तरह के मुतालबात नाकाबिले तसव्वुर थे. नेक्स्ट सेंटेंस. But in an apparent effort to smoothen ties after this episode, the Saudi ambassador in Islamabad on Monday called upon the Prime Minister. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड हैं apparent और smoothen. apparent का मतलब है ज़ाहिरी. apparent means ज़ाहिरी. नेक्स्ट वर्ड smoothen, और स्मूदन का मतलब है हमवार करना. स्मूदन मीन्स हमवार करना. सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं. बट इन एन अपेरेंट एफर्ट टू स्मूदन टाइज आफ्टर दिस एपिसोड, द सऊदी एम्बेसडर इन इस्लामाबाद ऑन मंडे कॉल्ड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, इसका उर्दू तर्जुमा देखते हैं. लेकिन इस वाक़े के बाद ताल्लुकात को हमवार करने की एक बज़ाहिर कोशिश के तौर पर पीर को इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की. नेक्स्ट सेंटेंस. दो ऑफिशियली इट वाज स्टेटेड दैट बायलैटरल कोऑपरेशन एंड द कोविड-19 सिचुएशन वर डिस्कस्ड, it is safe to assume that attempts were made to prevent the situation from deteriorating further. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड हैं bilateral, attempts, prevent और deteriorating. bilateral means दो तरफ़ा. bilateral का मतलब है दो तरफ़ा. नेक्स्ट वर्ड है अटैम्प्ट, और अटैम्प्ट का मतलब है कोशिश. अटैम्प्ट मीन्स कोशिश. नेक्स्ट वर्ड प्रिवेंट, और प्रिवेंट का मतलब है रोकना. प्रिवेंट मीन्स रोकना. नेक्स्ट वर्ड डिट्रायरेट, और इसका मतलब है मज़ीद ख़राब होना. डिट्रायरेट का मतलब मज़ीद ख़राब होना. सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं. Though officially it was stated that bilateral cooperation and the COVID-19 situation were discussed, it is safe to assume that attempts were made to prevent the situation from deteriorating further. इसका उर्दू तर्जुमा है, अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया कि दो तरफ़ा ताउन और कोविड-19 की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन ये समझना महफूज है कि सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने की कोशिश की गई थी. नेक्स्ट सेंटेंस. दिस अजम्पशन इज़ सब्सटेंशिएटेड बाय द फैक्ट दैट द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इज़ ड्यू टू विज़िट पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड हैं अजम्पशन और सब्सटेंशिएटेड. अजम्पशन का मतलब है मफरूज़ा. अजम्पशन मीन्स मफरूज़ा, किसी चीज़ को फ़र्ज़ करना. अजम्पशन. नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशिएट, और इसका मतलब है साबित करना. सब्सटेंशिएट मीन्स साबित करना. सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं. दिस अजम्पशन इज़ सब्सटेंशिएटेड बाय द फैक्ट दैट द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इज़ ड्यू टू विज़िट पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ. इसका उर्दू तर्जुमा है, ये मफरूज़ा इस हकीकत से साबित होता है
कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा अगले माह पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इन द मॉडर्न एरा perhaps the height of Pakistan-Saudi cooperation came when both states were on the same side helping the US give the Soviets a tough time in the Afghan jihad। इस सेंटेंस में आई थिंक मुश्किल वर्ड नहीं है, दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस। इन द मॉडर्न एरा perhaps the height of Pakistan-Saudi cooperation came when both states were on the same side helping the US give the Soviets a tough time in the Afghan jihad। इसका उर्दू तर्जुमा है, जदीद दौर में शायद पाकिस्तान सऊदी ताउन का उरूज उस वक्त आया जब दोनों रियासतें एक साथ अफगान जिहाद में रूस को मुश्किल वक्त देने में अमेरिका की मदद कर रही थीं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफ कोर्स द cooperation has continued thereafter, especially on the military and economic fronts, with the kingdom currently hosting over 1 million Pakistani workers who in turn have over the decades played a major role in transforming Saudi Arabia into a modern state। इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड्स हैं फ्रंट्स, होस्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। फ्रंट मीन्स महाज, फ्रंट का मतलब है महाज। नेक्स्ट वर्ड होस्टिंग, और होस्टिंग का मतलब है मेज़बानी करना। होस्टिंग मीन्स मेज़बानी करना। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म का मतलब है बड़ी तब्दीली करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब बड़ी तब्दीली करना। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स द cooperation has continued thereafter, especially on the military and economic fronts, with the kingdom currently hosting over 1 million Pakistani workers who in turn have over the decades played a major role in transforming Saudi Arabia into a modern state। इसका उर्दू तर्जुमा है, यकीनन इसके बाद भी ताउन जारी है, ख़ास तौर पर अस्करी और माशी महाज़ों पर, जिसमें इस वक्त सऊदी अरेबिया 1 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानियों को नौकरी दिए हुए है, जिन्होंने कई अशरों के दौरान सऊदी अरब को एक जदीद रियासत में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, However, the relationship was jolted in 2015 when, against presumed Saudi wishes, Parliament voted against entering the Yemen war। इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड है जॉल्टेड, और जॉल्ट का मतलब है झटका। जॉल्ट मीन्स झटका या धचका। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। However, the relationship was jolted in 2015 when, against presumed Saudi wishes, Parliament voted against entering the Yemen war। इसका उर्दू तर्जुमा है, ताहम इस रिश्ते को 2015 में उस वक्त धचका पहुंचा जब सऊदी अरब की मुतवक्की ख्वाहिशात के बरखिलाफ पार्लियामेंट ने यमन जंग में दाखिल होने के खिलाफ वोट दिया था। Next sentence, while the move had earned Riyadh's ire, the collective wisdom of Parliament has proved correct, keeping Pakistan away from a conflict that is an unmitigated humanitarian disaster। इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड्स हैं आयर, अनमिटिगेटेड और डिज़ास्टर। आयर मीन्स गुस्सा, आयर मीन्स गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है अनमिटिगेटेड,
और इसका मतलब है जिसमें कमी ना हो, बिला तखफीफ। अनमिटिगेटेड का मतलब है जिसमें कमी ना हो या बिला तखफीफ। नेक्स्ट वर्ड डिज़ास्टर, और इसका मतलब है तबाही। डिज़ास्टर मीन्स तबाही। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। While the move had earned Riyadh's ire, the collective wisdom of Parliament has proved correct, keeping Pakistan away from a conflict that is an unmitigated humanitarian disaster. इसका उर्दू तर्जुमा है, अगरचे इस इक़दाम ने रियाज को नाराज़ कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट की इज्तमाही दानिशमंदी दुरुस्त साबित हुई है, जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे तनाज़ा से दूर रखा जो बिला तखफीफ इंसानियत सोज तबाही है। नेक्स्ट सेंटेंस। Yet last year, it appears the Saudis were more successful in pressuring Pakistan as this country stayed away from a summit in Malaysia that Riyadh saw as an alternative to the OIC. इसमें मुश्किल वर्ड है अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव का मतलब है मुतबादिल। अल्टरनेटिव मीन्स मुतबादिल। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। Yet last year it appears the Saudis were more successful in pressuring Pakistan as this country stayed away from a summit in Malaysia that Riyadh saw as an alternative to the OIC. उर्दू तर्जुमा है, फिर भी ऐसा लगता है कि पिछले साल सऊदियों ने पाकिस्तान पर दबाव डालने में ज़्यादा कामयाबी हासिल की, क्योंकि ये मुल्क मलेशिया में होने वाले एक सरबराही इजलास से दूर रहा जिसको रियाज ने ओआईसी के मुतबादिल के तौर पर देखा। नेक्स्ट सेंटेंस। The Saudis are wary of seeing the formation of a bloc, including Pakistan, Malaysia, Iran and Turkey, lest it challenge Arab leadership of the Muslim world. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड्स हैं wary of और lest। wary का मतलब है होशियार या चौकस। wary का मतलब है होशियार या फिर चौकस। नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट, और लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो। लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। द सऊदीज आर वेरी ऑफ सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लॉक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान एंड टर्की, लेस्ट इट चैलेंज अरब लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इसका उर्दू तर्जुमा है, सऊदी एक ब्लॉक की तश्कील को देखकर होशियार हैं जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान और तुर्की शामिल हों कि कहीं ऐसा ना हो वो मुस्लिम दुनिया की अरब क़यादत को चैलेंज करे। नेक्स्ट सेंटेंस। आल्सो Prime Minister Imran Khan has said he has been facing demands to recognize Israel, with speculation that our Arab friends may be nudging us to establish ties with Tel Aviv. इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं recognize, speculation और nudging। recognize का मतलब है तस्लीम करना। रिकग्नाइज का मतलब है तस्लीम करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन का मतलब है क्यास आराई। स्पेकुलेशन मीन्स क्यास आराई।
नेक्स्ट वर्ड है नज, और नज कहते हैं कोहनी के इशारे से उकसाना या तवज्जो दिलाना। नज का मतलब है कोहनी के इशारे से उकसाना या तवज्जो दिलाना। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। आल्सो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ सैड he has been facing demands to recognize Israel, with speculation that our Arab friends may be nudging us to establish ties with Tel Aviv. तल अवीव जो है ये इसराइल का कैपिटल है। इसका उर्दू तर्जुमा देखते हैं। नीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि उन्हें इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबात का सामना करना पड़ रहा है, इस क़यास आराई के साथ कि शायद हमारे अरब दोस्त तल अवीव के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हमें उकसा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। गोइंग फॉरवर्ड Pakistan should by all means work towards improving and strengthening the bilateral relationship with Saudi Arabia. सेंटेंस में आई थिंक मुश्किल वर्ड नहीं है, दोबारा पढ़ते हैं। गोइंग फॉरवर्ड Pakistan should by all means work towards improving and strengthening the bilateral relationship with Saudi Arabia. इसका उर्दू तर्जुमा है आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को हर तरह से सऊदी अरब के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मुस्तहकम करने की तरफ काम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस। However, this should not come at the cost of sovereignty. This country must remain free to take decisions regarding foreign policy that are in its best interest. इसमें मुश्किल वर्ड है सोवरेनिटी, और सोवरेनिटी का मतलब है खुद मुख्तारी। सोवरेनिटी मीन्स खुद मुख्तारी। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। However, this should not come at the cost of sovereignty. This country must remain free to take decisions regarding foreign policy that are in its best interest. इसका उर्दू तर्जुमा है ताहम ये खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को खारजा पॉलिसी के बारे में फ़ैसला करने में आज़ाद रहना चाहिए जो इसके बेहतरीन मफाद में है। नेक्स्ट सेंटेंस। Moreover, Pakistan must work hard to stabilize its internal economic and political situation so that both friends and foes are unable to exploit its weaknesses. इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं स्टेबलाइज, फोज और एक्सप्लॉइट। स्टेबलाइज का मतलब है मुस्तहकम करना। स्टेबलाइज मीन्स मुस्तहकम करना। नेक्स्ट वर्ड फो, और फो कहते हैं दुश्मन को। फो का मतलब दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लॉइट, और एक्सप्लॉइट का मतलब है नाजायज़ फ़ायदा उठाना या मुकम्मल फ़ायदा उठाना। एक्सप्लॉइट का मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाना या मुकम्मल फ़ायदा उठाना। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। Moreover, Pakistan must work hard to stabilize its internal economic and political situation so that both friends and foes are unable to exploit its weaknesses. इसका उर्दू तर्जुमा है मज़ीद यह कि पाकिस्तान को अपनी दाखिली, माशी और सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए सख्त कोशिश करनी चाहिए
ताकि दोस्त और दुश्मन दोनों इसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने से कासिर हों। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको नए वर्ड सीखने को मिले होंगे और आपको फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो देखने से फ़ायदा हुआ, कुछ लर्निंग आपकी हुई, तो ऐसे वीडियोस दोबारा देखने के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।